Hey everyone, now I'm going to react on the last song of Krishna's EP Far From Over and last गाना है Some of Us. So देखते हैं Some of Us में क्या है basically and कुछ तो इंटरेस्टिंग होना चाहिए बिकॉज EP का लास्ट गाना है पहला और आखिरी गाना कुछ ना कुछ तो मीनिंगफुल होगा आई एम वेरी श्योर. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं रिएक्शन. अच्छा लिरिक्स ओपन करेंगे. Some of us. Nice start. Yeah, 100% tints on the Benzes, just so they can't see my face while riding through the trenches. And did I fail to mention, I like living low key, they love the attention. Always keep a switchblade so I could cut the tension. I got no more envy, only good intentions. I seen a lot of innocence turn into some henchmen. Everybody say they love you, most are just pretending. कितनी बातें तभी मन में आज इस मुकाम पे पहुंचा लगा हूंगा मैं भी खुश मिजाज. पैसा आया पर उससे भी ना दुख मिटा, मन में रखता गम पर उसका लगता ना है कुछ इलाज. कलम चले पर बोलने को कुछ ना आए, कितने गाने लिखे that won't ever see the light. अब फीलिंग नहीं आती वो वाली when I write, मुस्कुराते मेरे होठ but you don't see it in my eyes. होता ना यकीन they second guessing me still, पर मुझे ना था doubt I don't stress or need pills. कभी कभी लगती गलती just to be real, sometimes you don't know the recipe your destiny will. मेरी एक एडवाइस है कभी ना हाथ जोड़ना, मंजिल को पास रख तू उससे वास्ता ना तोड़ना. लास्ट तक ये खास कर तू रास्ता ना छोड़ना, सपने होंगे वास्तव सिर्फ आज का ना सोचना. मिलेंगे या लोग जो छीनेंगे तेरा होप, पर उम्मीदें ना है ब्रोक और ड्रीम है ना तेरा जोक. लड़ना only option when you lean against the ropes, they were cleaning up the coke while I was heating up the stove. पहले बड़ा चढ़ा के ये दाद देंगे कला के, बोलेंगे ये हवा में के साथ देंगे सदा. ये लोग कितने जाली वो तो बुरा वक्त ही बता दे, एक रात में होंगे रवा देखो भागेंगे ये दबा के. 100% tints on the Benzes, just so they can't see my face AR while riding through the trenches. Nice. And did I fail to mention, I like living low key, they love the attention. Always keep a switchblade so I could cut the tension. I got no more envy, only good intentions. I seen a lot of innocence turn into some henchmen. Everybody say they love you, most are just pretending. काटे सालों साल thinking I'll never make it, अब पहुंचा या तो I'm jaded, I'm thinking of all the hating. छोड़ गए सारे labels just because I started breaking. अगर किसी को नहीं रहना साथ is it even worth saving? किया हमने build ground up, we give it love. Everybody grows, that don't mean we give it up. Downfall this, downfall that. If kalamkar calls, they'll be down for that. मेरे भाई I will ride till the end. मुझ पे किया था भरोसा when I didn't have a chance. करे नहीं change plans when I wasn't making bands. They were giving me a hand जब कोई तेरा नहीं था damn. That's just really what this loyalty's about. Man, not type to get success and decide to walk out. इनको लग रहा disrespect, they ain't earning more than me. Deep down they think they deserve it more than me. Only thing that I liked in this life was to rap when I write. Only time that this life went a drag. वो feeling जाने लगी सोचूं शायद I'm tired. शायद मेरे अंदर नहीं है life वो fire. Shows करने लगा हूँ अब sell out में, पर अभी भी बैठा हूँ इधर self doubt में. अभी भी है डर, I get ready for the day. I walk out to the stage और होगा नहीं कोई crowd में. Yeah, 100% tints on the Benzes, just so they can't see my face while riding through the trenches. And did I fail to mention, I like living low key, they love the attention. Always keep a switchblade so I could cut the tension. I got no more envy, only good intentions. I seen a lot of innocence turn into some henchmen. Everybody say they love you, most are just pretending. Life gets crazy and these problems become endless. You wanna see the lifestyle, baby it's expensive. I'll save the story for another day, it gets extensive. Was gonna blow a bag, now I'm thinking I'll invest it. I don't like to say much, save all of the questions. Some of us are grateful, counting up our blessings. Some of us are focused on our L's instead of learning from our lessons. But I feel like God's watching and we're all just being tested. Man, to be honest, मतलब मेरे को बहुत स्टिल स्टैंडिंग बहुत अच्छा लगा था इस एल्बम का. मुझे प्रार्थना बहुत अमेजिंग लगा था, जो मुझे याद रह गए गाने राइट. अभी वाना नो बहुत ग्रूवी एंड स्लो फील था, होला एमिगो बहुत अलग फील था, बट आई रियली लाइक स्टिल स्टैंडिंग. आई रियली लव्ड प्रार्थना. एंड ये जो सम ऑफ अस है ये तो यार अलग लेवल हिट कर रहा है मुझे, बिकॉज दिस इज़ अ मोटिवेशनल सॉन्ग. यू नो, वो अपने बारे में, अपनी लाइफ, अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, अपनी ट्रू इंटेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं कृष्णा.
एंड इवन जो AR पेस्ली हैं, उनका भी वॉइस टेक्सचर, उनकी भी जो राइटिंग्स है वो सेम जोन में ही है, दोनों सेम ही बात कह रहे हैं इंग्लिश में एंड हिंदी में. एंड इट इज़ वेरी मोटिवेटिंग, वेरी नाइस. बहुत खूबसूरत लिरिक्स हैं, बहुत सीधे सीधे अपनी बात कह रहे हैं. अगेन कुछ घुमा फिरा के या कुछ इन लिरिक्स में एक्सप्लेन करने वाला नहीं है, बट बहुत बहुत खूबसूरती से लिरिक्स में उनकी जो सारी फीलिंग्स हैं उन्होंने दर्शाई हैं. एंड आई रियली लव, मतलब स्टिल स्टैंडिंग, प्रार्थना एंड सम ऑफ अस. आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग. मतलब अगर एक चुनना होगा तो सम ऑफ अस प्रार्थना से, मतलब बहुत सिंप्लीफाइड है. प्रार्थना में देयर वाज सो मच ऑफ म्यूजिक एंड सो मच ऑफ जैज एंड सो मेनी थिंग्स वर देयर, सो मच फैक्टर होता है, एक डिफरेंट सा कुछ एकदम बार आ गया एंड सरप्राइजेज एंड ऑल थे. ये बहुत सीधा सीधा है, लेकिन यार दिल को छूने वाला है सच में. आई अगर एक गाना मतलब मेरे को दोबारा दोबारा सुनना होगा ना, तो सम ऑफ अस एक ऐसा सॉन्ग है कि बार बार सुनने का मन करेगा, बिकॉज इट इज़ मोटिवेटिंग ऑल्सो, वेरी सिंपल एंड वेरी स्वीट एंड वेरी नाइस. आई loved this song of the CP, Some of Us. तो एक बार लिरिक्स हम, मतलब समझाने वाला कुछ नहीं है इसमें, ब्रेक डाउन करने वाला कुछ नहीं है, बट फिर भी ऐसे ही, बिकॉज इतने अच्छे लिरिक्स हैं तो लेट्स गो थ्रू. अच्छा, मेरे को इसका मीनिंग नहीं पता था, मैंने चेक किया अभी गूगल पे. हेंचमैन का मतलब होता है आपका कि जो प्रोटेक्ट करे, किसी पर्सन को अगर आप किसी की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाए, किसी व्यक्ति को जो हिंसात्मक या गैर कानूनी काम भी कर सकता है. जो इनके इंग्लिश के लिरिक्स हैं AR पेस्ली के, उसमें हेंचमैन करके वर्ड है. अ पर्सन हु इज़ एम्प्लॉयड बाय समबडी टू प्रोटेक्ट हिम और हर and who may do things that are illegal or violent. So देखते हैं लिरिक्स एक बार. Some of us. So यहाँ इसमें डेफिनेटली जब ये एल्बम का मैंने पहला गाना किया था रिएक्शन स्टिल स्टैंडिंग, तो मैंने कवर के ऊपर भी बात की थी कि कवर से ऐसा लग रहा है, एंड लास्ट गाने में उन्होंने वो चीज़ मेंशन कर दी है कि कलमकार के आर्टिस्ट जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट छोड़ के चले गए हैं कलमकार को. तो मैंने फर्स्ट जब किया था तो मैंने इसके कवर की बात की थी कि जो कवर है उसमें खाली कुर्सी है, रे ऑफ होप आती दिख रही है, तो कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आर्टिस्ट जा रहे हैं तो और इसके लिए जो एल्बम का नाम है वो फार फ्रॉम ओवर है, कि आर्टिस्ट जा तो रहे हैं कलमकार छोड़ के कुछ, लेकिन फिर भी रे ऑफ होप दिख रही है, एंड कलमकार इज़ फार फ्रॉम ओवर. तो मुझे ऐसा लगा था, एंड लास्ट इसमें सम ऑफ अस में उन्होंने ये चीज़ जाहिर भी कर दी अपने लिरिक्स के थ्रू. तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं अभी लिरिक्स. हाँ, तो ये 100% टिंट्स ऑन द मर्सिडीज बेंज, राइट, उसकी बात कर रहे हैं कि 100% टिंटेड है ग्लास, जस्ट सो दे कैन सी माई फेस वाइल राइडिंग थ्रू दी ट्रेंचेस. तो जब वो मैं ट्रेंचेस से राइड करूँ, ट्रेंचेस यानी कि शायद से मतलब मुश्किल रास्ते होगा ना, ट्रेंचेस का मतलब है ना ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे. लॉन्ग नैरो होल डग इन द ग्राउंड फॉर वाटर टू फॉलो अलॉन्ग, है ना, मतलब बेसिकली गहरा गड्ढा है समथिंग. या मैं जब भी कभी ऐसे रास्ते से, मुश्किल रास्ते से निकलूँ तो मेरा चेहरा ना देख पाएँ. एंड डिड आई फेल टू मेंशन आई एम लिविंग लो की, मैं लो की रह रहा हूँ. उनको अटेंशन चाहिए, उनको देखना है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, बट मैं लो की रख रहा हूँ, मुझे ज़्यादा अटेंशन सीकिंग नहीं बनना है. एंड ऑलवेज कीप अ स्विच ब्लेड सो दैट आई कैन कट द टेंशन, है ना. और एक सेकेंड, आई कैन कट द टेंशन मतलब अच्छा, मेरे को नहीं पता था स्विच ब्लेड. तो बेसिकली अ नाइफ हैविंग अ ब्लेड हिडन इनसाइड इट्स हैंडल जो स्प्रिंग आउट करता है. ओके, स्विच ब्लेड, हाँ स्विच ब्लेड इसीलिए बोलते होंगे, है ना. तो ऑलवेज कीप अ स्विच ब्लेड सो दैट आई कैन कट द टेंशन. आई गॉट नो मोर एनवी, ओनली गुड इंटेंशंस है मेरे. एवरीबडी से दे लव यू, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहे हैं, प्रिटेंशियस लोग हैं, मुंह पे कह रहे हैं कि दे लव यू एंड बट इन एक्चुअली दे डोंट. सो देन कृष्णा का बार शुरू होता है, एंड वो इसी थीम पे है कि कितनी बातें दबी मन में आज, इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, पहुंचा लगा हूँगा मैं भी खुश मिजाज. पैसा आया पर उससे भी ना दुख मिटा, मन में रखता गम पर उसका लगता है ना कुछ इलाज. कलम चले पर बोलने को कुछ ना आए, कितने गाने लिखे दैट वोंट एवर सी दी लाइट. ये एक राइटर की
हर राइटर की एक वो होता है कि बहुत सारे गाने लिखते हैं सब, लेकिन बहुत सारे गाने रिलीज़ नहीं करते हैं, हर गाना रिलीज़ नहीं किया जाता, राइट? तो कितने गाने लिखे दैट वोंट एवर सी दी लाइट, अब फीलिंग नहीं आती वो वाली व्हेन आई राइट, मुस्कुराते मेरे होठ बट यू डोंट सी इट इन माई आईज, यानी कि कहते हैं ना मुस्कुराहट आंखों तक पहुंच रही है तो आप रियल में खुश हो, तो मुस्कुराते हैं मेरे होठ बट यू डोंट सी इट इन माई आईज, होता ना यकीन दे सेकेंड गेसिंग मी स्टिल, पर मुझे ना था डाउट, आई डोंट स्ट्रेस और नीड पिल्स, मुझे पिल्स की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी लगती गलती जस्ट टू बी रियल, समटाइम्स यू डोंट नो द रेसिपी योर डेस्टिनी विल, दिस इज़ माई फेवरेट लाइन ऑफ द सॉन्ग, कि कई बार आपको नहीं पता होता है कि आपको क्या करना है, आपको समझ नहीं आता है आपका रास्ता कहाँ जा रहा है, क्या क्या रास्ता लेना है, कहाँ पहुँचेंगे, बट आपकी डेस्टिनी जानती है, तो समटाइम्स यू डोंट नो द रेसिपी, है ना, सक्सेस का रेसिपी या जो भी, जब भी आपका डेस्टिनेशन जो आप चाहते हो पहुंचना, वो उस तक कैसे पहुंचोगे उसकी रेसिपी या रास्ता समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपकी डेस्टिनी खुद वो रास्ता बनाती जाएगी। तो मेरी एक एडवाइस है, कभी ना हाथ जोड़ना, मंजिल को पास रख तू उससे वास्ता ना तोड़ना, लास्ट तक ये खास कर तू रास्ता ना छोड़ना, सपने होंगे वास्तव सिर्फ आज का ना सोचना, मिलेंगे यहाँ लोग जो छीनेंगे तेरा होप, पर उम्मीदें ना है ब्रोक और ड्रीम है ना तेरा जोक, दिस इज़ लवली, पर उम्मीदें ना है ब्रोक, उम्मीदें ना है ब्रोक और ड्रीम है ना तेरा जोक, ऑसम। लड़ना ओनली ऑप्शन व्हेन यू लीन अगेंस्ट द रोप्स, they were cleaning up the coke while I was heating up the stove, मतलब वो एक, मतलब प्रोडक्टिव बात करें ना, आई वॉज हीटिंग अप द स्टोव, पहले बढ़ा चढ़ा के ये दाग देंगे कला के, बोलेंगे ये हवा में किस ये साथ देंगे सदा, ये लोग कितने जाली वो बुरा वक्त ही बता दे, एक रात में होंगे रवा देखो भागेंगे ये दबा के, देन अपना ए आर पेस्ली का वही कोरस, एंड देन कृष्णा का वर्स 2, काटे सालों साल थिंकिंग आई विल नेवर मेक इट, ये बहुत इमोशनल वर्स है, अब पहुंचा यहाँ तो आई एम जेडेड, आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द हेटिंग, छोड़ गए सारे लेबल जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड ब्रेकिंग, है ना, अगर किसी को नहीं रहना साथ इज़ इट इवन वर्थ सेविंग, कहते हैं ना कि अगर कोई आपके साथ रहा ही नहीं तो क्या वो रिश्ता पहले भी जो था वो वर्थ सेविंग था, ये अपने अंदर डाउट्स आने लग जाते हैं कई बार, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जेडिड का मतलब होता है कि आप कंटिन्यूस काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट इतना कंटिन्यूस काम कर रहे हो कि उसके बाद जब वहाँ पहुँच गए तो आप थकान महसूस करते हो, है ना, तो आई एम थिंकिंग ऑफ ऑल द हेटिंग, छोड़ गए सारे लेबल जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड ब्रेकिंग, अगर किसी को नहीं रहना साथ इज़ इट इवन वर्थ सेविंग, किया हमने बिल्ड ग्राउंड अप वी गेव इट लव, एवरीबडी ग्रोज दैट डोंट मीन वी गिव इट अप, डाउनफॉल दिस डाउनफॉल दैट, इफ कलमकार कॉल्स दे विल बी डाउन फॉर दैट, मेरे भाई हैं आई विल राइट टिल द एंड, मुझ पे किया था भरोसा व्हेन आई डिडंट हैव अ चांस, करे नहीं चेंज प्लान्स व्हेन आई वाजंट मेकिंग बैंड्स, दे वर गिविंग मी अ हैंड जब कोई दे नहीं रहा था डैम, दैट्स जस्ट रियली व्हाट दिस लॉयल्टी इज अबाउट, मैं ना टाइट टू गेट सक्सेस एंड डिसाइड टू वॉक आउट, इनको लग रहा disrespect, they ain't earning more than me, deep down they think they deserve it more than me, only thing that I liked in this life was to rap, when I write only time that this life weren't a drag, वो फीलिंग जाने लगी सोचूं शायद आई एम टायर्ड, शायद मेरे अंदर नहीं अलाइव वो फायर, शोज करने लगा हूँ अब सेल आउट में, पर अभी बैठा हूँ इधर सेल्फ डाउट में, अभी भी डर, आई गेट रेडी फॉर द डे, आई वॉक आउट टू दी स्टेज और होगा नहीं कोई क्राउड में, तो ये एक अच्छी चीज़ है, यू नो, एक आर्टिस्ट हमेशा अगर अपने आप को सेल्फ डाउट भी कर रहा है ना तो वो कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते रहेगा, तो इट्स एंड एवरी आर्टिस्ट जो डाउन टू अर्थ होंगे एंड ऑल, दे विल फील दिस ऑलवेज, चाहे वो कितने ही फेमस क्यों ना हो जाएं।
देन AR पेसले के कोरस हैं एंड गाना ख़त्म हो जाता है। मैं पहले ही इस गाने की तारीफ़ कर चुकी हूँ दैट आई एम इन लव विद दिस सॉन्ग ऑफ दिस EP एंड इफ़ यू लाइक माई रिएक्शंस प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल एंड कमेंट्स में बताइए आपको और कौन से गानों पे रिएक्शंस देखने हैं। बाय बाय।